جی میں بتا رہی تھی کہ جیسے ایک تو انوائنگ ہیبٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اونچی اونچی باتیں کر رہے ہوتے ہو دوسروں کو سنانے کے لیے, اور اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ بہت زیادہ تیز پرفیوم لگا کے آتے ہیں, وہ بھی میں نے جو سروے کیا تھا وہ بھی لوگوں کے لیے انوائنگ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو الرجی بھی ہو سکتی ہے اس سے, ٹھیک ہے, مطلب جو بہت, کیونکہ آپ ورک پلیسز پہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہو, کیبنز آپ کے چھوٹے ہوتے ہیں یا ساتھ ہو, تو وہ آپ کو اریٹیٹ کر سکتی ہیں وہ چیزیں. اور اس کے علاوہ مطلب اچھا ایک اور اریٹیٹنگ عادت بھی ہوتی ہے لوگوں کی, موبائل پڑا ہوتا ہے کسی کا تو اٹھا چیک کرنا, ہاں یہ ایگزیکٹلی آپ نے بڑی کہ ٹیکسٹ اس کے چیک کرنا ہے, اس میں ہو سکتا ہے اپنی تصویر لگائی ہو, اس کے کمپیوٹر کو چیک کرنا, یا یہ ساری باتیں میں پوچھ رہی تھی لوگوں سے, تو جو ورک پلیس پہ میرے جاننے والے لوگ ہیں, میرے فرینڈز ہیں, وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس طرح ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں. یا اچھا پھر ایک اور ہے, جیسے اب تو یہی ہے انٹرنیٹ کا ہے سلسلہ, آپ کو جنک میلز آتی ہیں, آپ کو کوئی اس طرح کی, اس سے بھی لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں. آپ بغیر مطلب جو ٹیکسٹ بھیج رہے ہو, آپ جو ٹیکسٹ میسیجز جو ہوتے ہیں, مطلب جو اب کی میں بات آج کل کے زمانے کی بات کر رہی ہوں, جو اریٹیٹنگ آتے ہیں لوگوں میں, مطلب لوگ پسند نہیں کرتے بے وجہ کوئی کسی کو ٹیکسٹنگ کر رہا ہے. تو اس چیزوں کو بھی مطلب یہ چیز خیال میں رکھنی چاہیے. اور باڈی لینگویج بہت میٹر کرتی ہے. پھر سے میں اس پہ آؤں گی, کیونکہ اکثر میں نے عورتوں کو شکایت دیکھی ہے, آپ بے شک منہ سے کچھ نہیں کہو گے, لیکن جو آپ کی باڈی لینگویج ہے نا, وہ آپ کو سب کچھ کہہ دیتی ہے. کہ آپ آنکھوں سے کسی کو ہراس کر سکتے ہو, آپ کوئی مطلب میسج کنوے کر سکتے ہو, آپ باڈی لینگویج سے آپ کسی کو بھی کوئی میسج, صرف لڑکیوں کو نہیں, لڑکے لڑکیاں مطلب دونوں کو آپ تنگ کر سکتے ہو. رائٹ, اور بہت ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں. کئی دفعہ لوگ انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں, انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. مطلب کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر صاحبہ, میں نے بات کی تھی کہ اس کو مگز بانی کو ایز اے پروفیشن اپنایا جا سکتا ہے, اس کو سیکھا جا سکتا ہے, اس کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک روزگار کی صورت اختیار کر رہی ہے؟ جی, اس کو آپ ایز اے روزگار ہر عمر کا جو بندہ ہے اس کو کر سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ڈیووٹڈنس کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ اس کے بارے میں سیکھیں پہلے. ٹھیک ہے, ٹریننگ کورسز میں حصہ لیں, کسی تجربہ کار مگزبان کے ساتھ کچھ دن گزاریں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کس وقت اس کے ساتھ کون سی حکمت عملی کرنی چاہیے تاکہ آپ کو صحیح ٹائم پر آپ کو شہد حاصل ہو جائے. صحیح ٹریننگ ہونی چاہیے. اور آپ نے کہا ڈیووشن اور آنیسٹی, یہ دو چیزیں آپ نے کہیں, تو یہ دو چیزیں اتنی اہم کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک جاندار کیڑا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. اس کو خوراک بھی چاہیے, اس کو ویسے تو یہ اتنا زیادہ لاپرواہ نہیں ہو سکتے, لاپرواہ نہیں ہو سکتے, اس میں بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان رکھنی چاہیے, اور ریگولرلی اس کا چیک اپ ہونا چاہیے. اور آنیسٹی یہ ہے کہ شہد جب آپ نے حاصل کیا ہے تو اس کو صاف ستھرے برتنوں میں رکھنا, صاف ستھرے طریقے سے اس کو کشید کرنا, اور ہائیجین کا خیال رکھنا. اور ایڈلٹریشن لوگ کہتے ہیں نا کہ شہد میں ملاوٹ ہو گئی, وہ یہ کہ جس وقت شہد کے دنوں کے ایام ہے, پھولوں سے شہد آ رہا ہے, اس وقت اگر آپ چینی پلانا شروع کر دیں. اچھا, ہاں یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ چینی پلانا ویسے تو مینجمنٹ کا حصہ ہے, لیکن یہ صرف اس صورت میں جب باہر سے کچھ نہ آ رہا ہو اور آپ نے شہد سارا ان سے لے لیا ہے, کشید کر لیا, نکال لیا ہے, ان کے سروائیول کے لیے آپ کو کھلانا ہے. اور وہ ایام ہوتے ہیں جولائی اور اگست کا. یہ ان 2 مہینوں میں آپ چینی کا شیرہ پلائیں بے شک. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے آپ کا؟ گڈ, ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں عالیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. عالیہ ویلکم, خوش آمدید کہیں گے. اور کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ ٹھیک ٹھاک, بس میں آپ لوگوں کا سن رہی ہوں, آپس میں جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں, جو بہت سی اویئرنیس ہو رہی ہے ہمیں. تھینک یو, بہت شکریہ. اور دوسرا تو ایک تو مجھے آپ کا یہ اسٹائل بہت بہت پسند ہے. یہ تو آپ میسج دے رہی ہیں, جو آپ نے پورا بال کور کیے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگوں کو میسج مل رہا ہے آپ کا. بہت شکریہ. تو مجھے کوشچن کا آنسر دینا تھا کہ 22 جون ہے میرے خیال سے. 22 جون؟ اب جون پہ چلی گئی, چلیں ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا والدین کے ادب کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ آئی تھنک کال ڈراپ ہو چکی ہے. جی میم, کمنگ بیک ٹو یو.
डॉक्टर एलिज़ाबेथ, हम बात कर रहे थे अबाउट कि एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, चीनी का जो शीरा है वो भी टाइम पे पिलाएं. अच्छा, ये काम, ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? क्या बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कोई रकबा बहुत ज़्यादा होना चाहिए? डिपेंड करता है कि आप इसको एज अ बिजनेस लेना चाह रहे हैं या सिर्फ एक आध कॉलोनीज रख के आप सिर्फ अपने ख़ानदान की ज़रूरत पूरा करना चाह रहे हैं. तो लेकिन अगर प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं तो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम अगर 5 कॉलोनीज हैं तो आप तकरीबन 30,000 से काम शुरू कर सकते हैं, लिटिल इन्वेस्टमेंट. ठीक है. और आप और रकबा वगैरह? रकबे की जरूरत, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि इसको ना ज़मीन की ज़रूरत है, ना पौधों की, ना फसलों की. ये कुदरती तौर पर खुद से ही अपने लिए ले आती है खुराक. आपको खुराक डालने की जरूरत नहीं है. रखने के लिए ज़मीन इतनी ही चाहिए जितने 1 गज ज़मीन बस. मतलब ये तो मेरा ख्याल बड़ा आप छतों पे भी रख हाँ, सकते हैं, अपने छतों पे भी रख सकते हैं. सादा इसकी ज़रूरत ये है कि बाहर से खुले में रखें. नहीं, फूलदार पौधे हों ओके. और वाफिर मिकदार में हों, सैकड़ों के हिसाब से हों, तो आपको शहद मिलेगा, वरना नहीं. हमारे सेक्टर में तो नहीं हो सकता, उधर तो दरख्त नहीं है तो फूल. मैं G64 में रहती थी, इस्लामाबाद के सेक्टर में, और एक साल ये है बात 1992 की, 1992. तो मैंने एक कॉलोनी रखी और उससे मैंने मैनेज किया. जाहिर है डिफरेंट सीजनल मैनेजमेंट होती है कि सर्दियों में ये करना है, गर्मियों में ये करना है, अच्छा, बाहर हम में ये जानना करना है. चाहेंगे आप इनकी ट्रेनिंग देते हैं? जी बिल्कुल. लेकिन एक कॉलर को शामिल करें. चलें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. और कॉल ड्रॉप होगी. अच्छा, NARC जो है ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, इस पर ये शोबा मगज़बानी आज से 32 साल पहले, 32 years back. हाँ, और मैंने तभी ज्वाइन किया था और मेरा तजर्बा तब से है. पहले हम पहाड़ी मक्खी को रखते थे डिब्बों में और उससे जो शहद हासिल होता था वो मुश्किल से बमुश्किल 8 किलो सालाना. फिर PRC ने इंट्रोड्यूस किया एक्सक्यूज़ मी वलायती मक्खी को, यानी फार्मी मक्खी को, और जो कि जिसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. और इस वक्त हम उस एक कॉलोनी से हम 28 किलो तक शहद हासिल कर सकते हैं. तो इसी वजह से इसको माइग्रेटरी बी कीपिंग भी कहते हैं, यानी कि आपको अपनी मक्खियों को शिफ्ट करना पड़ता है ऐसे इलाकों में जहां आप वाफिर मकदार में आपको ज़रगुल देने वाले और वो देने वाले नेक्टर देने वाले पौधे हों वाफिर मकदार. और ये बहुत इजीली हम घर में रख सकते हैं और ख़ास तौर पे ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे फूल पौधे मौजूद हों, राइट. और इसके अलावा ट्रेनिंग जो है वो हासिल की जा सकती है. और कितनी ड्यूरेशन है इस ट्रेनिंग की? हम इंट्रोडक्टरी करवाते हैं कोर्सेज जो कि 6 दिन का होता है कोर्स, और उसमें लोग शामिल होके, और हमने तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं पिछले 30 साल. राइट, ज़बरदस्त. और अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं, मगज़बानी का इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट NARC. और बहुत सी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर एलिज़ाबेथ ने भी हमें दी. आप इसको एज अ प्रोफेशन जो है अडॉप्ट कर सकते हैं. बहुत सा जिसको कहते हैं इसका फ्यूचर जो है ब्राइट है. इस साइट पे ज़रूर आइए. और इसके साथ ही कॉलर को शामिल करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, हु इज़ दिस? अब्बास बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से. जी, वेलकम अब्बास, खुशामदीद कहेंगे आपको. आज के सवाल का जवाब. जी 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है ये आपके सवाल का जवाब जो है 21 मार्च और 23 सितंबर है. ओके, बोथ डेट्स, राइट. अच्छा, और मौजू के हवाले से क्या कहेंगे? वालदैन टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है. और वालदैन का बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वालदैन अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है और इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी कदर उन लोगों से पूछनी चाहिए जिनके वालिदैन नहीं हैं. बिल्कुल सही. आई थिंक यही बहुत बड़ा मेरा ख्याल है इसका कमेंट. राइट. और आपको लगता है, मुझे आपकी आवाज़ से लग रहा है कि माशाल्लाह आप एक नौजवान हैं, तो आज के नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हुए आप क्या कहते हैं कि आज के नौजवान वालिदैन के फरमाबरदार हैं? वेरी सॉरी टू से बिल्कुल भी नहीं है. और इसमें जो है मैं समझता हूँ कि हमारे टीचर्स का और हमारे पेरेंट्स का भी कसूर है कि वो जो है अपनी औलाद की उस तरह तरबियत ही नहीं कर रहे कि जो है वो उस तरह मतलब जो एक अच्छा, आपने ये बॉल भी जो है वालिदैन के कोर्ट में डाल दी कि उनकी तरबियत आजकल ऐसी नहीं है कि बच्चे जो हैं वो उस तरह फरमाबरदार हों जिस तरह पहले थे, राइट. और जो टीचर्स जो हैं उनको भी हम रूहानी वालिदैन कहते हैं, रूहानी बाप कहते हैं उस्ताद को. क्या वो सही ट्रेनिंग करें? क्या उनकी आज कई नौजवान इज्जत करते हैं? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आजकल जो टीचर्स हैं वो एजुकेशन उस लेवल की नहीं दे रहे.
हर टीचर तो नहीं, मोस्टली टीचर्स जो हैं वो उन्होंने एजुकेशन को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहे हैं, मतलब उस तरह तालीम नहीं दे रही जिस तरह आज से कुछ साल पहले दी जाती है। थैंक यू वेरी मच, और बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और एक ये नौजवान की आवाज़ थी, मैंने कहा नौजवानों के हालात पूछने चाहिए, और हम सेगमेंट के एंड की तरफ बढ़े। लेकिन नाइला, बहुत अहम है ये जो इतनी अनोइंग हैबिट्स हैं, कैसे इनको हल करें, जल्दी से बताएं हमें। नहीं, सबसे पहले तो ये होता है ना कि कुछ लोग, मैं अब जल्दी से इसको एक वाइंड अप कर रही हूँ, क्योंकि एक कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि लोग जल्दी से छोड़ देते हैं। मतलब इसके 3 तरीके हैं, या तो कुछ में इतनी विल पावर होती है, विल पावर पे डिपेंड करता है कि वो एकदम उसको छोड़ दिया। जैसे अगर कोई सिगरेट नोशी कर रहा है, उसको एकदम छोड़ा तो फिर उसने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन एनीवेज अगर विल पावर नहीं है तो अगर फिर ये हो सकता है कि जैसे फिर आप ये कर सकते हो कि उस आदत को अपनी जगह पे रहने दें, और एक टाइम में दिन में कोई ऐसा वक्त मुकर्रर करें कि जिसमें आपने वो नहीं करना। ठीक है, कॉन्शियसली एफर्ट करें। एक मतलब वो तो यू हैव टू डू दिस, क्योंकि कॉन्शियस एफर्ट इज मस्ट। तो उसके बाद तीसरा पे ये आता है कि आप उस आदत को भी वहीं पे रहने दें, लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ों को बढ़ा दें। मतलब ये बैड हैबिट रहने से पॉजिटिव आप उसकी ज़्यादा शुरू कर दें। राइट नाइला, और बहुत सी टिप्स इस हवाले से। डॉक्टर साहिबा, एक क्विक मैसेज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, क्या कहना चाहेंगे आज सच के प्लेटफॉर्म से? यही कि शहद की मक्खियाँ पालनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और इस वक्त ज़्यादातर मगज़बानी में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा अफ़गानी हैं। तो मैं चाहूँगी कि पाकिस्तानी आगे आएँ और इस क्या कहना चाहिए, इंडस्ट्री में अपना हिस्सा डालें। वैसे तो 27,000 ख़ानदान हैं जो कि इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, बट ये कि पाकिस्तानी इसमें कम है, आगे बढ़ें और आगे फील्ड को ज्वाइन करें, और NARC से भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। और नाइला, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज ये है कि मैं अपनी आदतें संवार लें। इसके लिए कोई एज मुकर्रर नहीं है। आप कहें कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं अब ये नहीं कर सकता या कर सकती, आप किसी एज में भी अपने आप की मतलब हैबिट डेवलप कर सकते हैं, अच्छी आदतें कर सकते हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू डॉक्टर नाइला फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू डॉक्टर एलिज़ाबेथ फॉर जॉइनिंग अस। और बहुत सी गुफ्तगू रही, टॉपिक भी हमारा मौजूद है, सवाल भी हमारा मौजूद है, और इसके अलावा मैं भी मौजूद हूँ। एक नए गेस्ट के साथ हम आपसे मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आपने बिल्कुल हमारा इंतज़ार करना है। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको दोबारा से हम वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा में। सच सवेरा में बहुत सी गुफ्तगू हो रही है आपसे, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट विश जो थी वो मैं भूल गई। मैं बताना चाहूँगी, बल्कि मैं विश करना चाहूँगी नबीला सिंधु को, उसकी आज बर्थडे है। जी हाँ, नबीला सिंधु आपकी जानी पहचानी हमारी न्यूज़ एंकर हैं, बड़ी प्यारी सी। आज उनकी बर्थडे है, तो वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू नबीला। और इसके अलावा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमें ज्वाइन करें, कॉल करें, हमें हमारे आज के सवाल का जवाब दें। और आज का हमारा सवाल है, कौन सी तारीख है जिसमें दिन और रात का दौरानिया एक जैसा होता है? जी हाँ, ये आज का सवाल है, और आज का मौजू है वालिदैन का अदब। जी हाँ, हमारे वालिदैन जो अल्लाह ताला का एक बेशकीमत तोहफ़ा है हर इंसान के लिए, और अल्लाह ताला सबके माँ बाप उनके सर पे कायम रखे और उन्हें सेहत ज़िंदगी अता करे। हम चाहेंगे आप हमें ज्वाइन कीजिए, और सच के प्लेटफॉर्म पे आज गुफ्तगू करेंगे हम वालिदैन के अदब के हवाले से भी। और इसके अलावा आज आपको एक ऐसी शख्सियत से हम दोबारा मिलवा रहे हैं जो कि हमने नाज़रीन की, आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर उनको दोबारा मदऊ किया। एक दफ़ा पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, लेकिन चूँकि वक्त बहुत कलील था इसलिए बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी। हमने चाहा आज मुकम्मल तौर पे उनसे गुफ्तगू करें, बहुत डिटेल में उनसे गुफ्तगू रहेगी। एक ऐसी शख्सियत है, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, झील साइंसेज़ में उन्होंने PhD की है, बहुत सी किताबें लिखी हैं जो कि शाया हो चुकी हैं। उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो आप देख रहे होंगे। सच चैनल पे भी उनका एक प्रोग्राम अबाउट हेल्थ साइंसेज़, नेचुरल हेल्थ चलता है, जो कि आप यकीनन देखते होंगे। इसके अलावा उनकी बुक्स के नाम मैं आपको बताती चलूँ, डिप्रेशन का जदीद इलाज, और इसके अलावा झील साइंसेज़, सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ हीलिंग एनर्जीज़, इनकी ये मुख्तलिफ किताबें हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। आप डेफिनेटली इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। झील साइंसेज़ के हवाले से बात करेंगे। झील साइंसेज़ के हवाले से हम जब बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि शायद उस तरह हम एलोपैथी में उनका इलाज ना हो पाए। हर बीमारी का
علاج یہ کر سکتے ہیں تھرو زیل سائنسز. آپ چاہیں تو انہیں کال کر سکتے ہیں, اپنی بیماری جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکٹر موجود ہیں, ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو ویلکم کہیں گے, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بہت ہمیں اچھا فیڈ بیک آیا. لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے, تھوڑی اوبیسٹی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی, لیکن وہی بات ہے کہ ہم وقت کے قیدی ہوتے ہیں, وقت بڑا محدود ہوتا ہے, تو ہمیں بڑی پرزور فرمائش آئی ویورز کی طرف سے کہ دوبارہ سے بلایا جائے. بہت سی گفتگو انشاءاللہ آج بھی ہم کریں گے. اور مجھے بھی بہت خوشی ہے سچ ٹی وی پہ آ کے اور لوگوں کے ساتھ اپنا نالج شیئر کر کے بہت اچھا لگتا ہے. اور یقیناً جو آج آپ کا جو ٹاپک ہے والدین کا ادب, والدین کا, یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اور یہ آج کل اتنا کشمکش ہے والدین اور بچوں کے درمیان کہ والدین چاہتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ ماڈرن دنیا اور ماڈرنزم میں اتنا زیادہ انوالو ہے کہ والدین کو ٹائم بھی نہیں دے سکتے, والدین کو مانتے بھی نہیں ہیں. والدین اگر کہتے ہیں کہ آپ بچے یہ کر لیں, آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال لیں, ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہے یہ پرانے مائنڈ کے لوگ ہیں. تو یہ ایک بڑا کشمکش ہے بچوں اور والدین کے. جنریشن گیپ کا اس کو نام دیا جاتا ہے, کمیونیکیشن گیپ بھی موجود ہے بہت زیادہ, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنا زیادہ اتنے فاسٹ چلتے جا رہے کہ اس کی وجہ سے جو نئے ٹیکنالوجی ہے اور جو پرانے لوگ ہیں جو عادی تھے نیچر کے ساتھ نیچرلی, اور یہ جو لوگ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک کالر کافی دیر سے ویٹ پہ ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں سلمہ بات کر رہی ہوں بہاول نگر سے. آج فرسٹ ٹائم میری کال ملی ہے. ویلکم جی, خوش آمدید کہیں گے آپ کو, اور آئندہ بھی آپ نے کال کرتے رہنے. آج کے موضوع کے حوالے سے, آج کے سوال کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ ہاں جی, سوال آج کا تو ہے کہ 22 دسمبر ہے. اوکے. اور آج کا ٹاپک ہے کہ والدین کا ہے کہ والدین کی رسپیکٹ جو آج کے دور میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے, وہ اس میں قصور والدین کا بھی ہے. یہ نہیں کہ صرف بچوں کا ہی ہے, والدین نے اتنی ان کو چھوٹ اتنی دی ہے, انہیں آزادی, تو اب وہ اس کو بھگتنا تو پڑے گا والدین کو بھی. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے والدین, وہ کہتے ہیں کہ والدین, پنجابی کی کہاوت ہے کہ ماں پیو دی گالاں سی ہو رہی ہیں نالا. تو آج کل کے بچے تو یہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ والدین انہیں کوئی ذرا سی بات. اچھا, یہ اس محاورے کا ذرا مطلب پلیز دوبارہ بتائیے گا اردو میں. اس میں اردو میں اس کا مطلب ہے کہ والدین کی جو گالیاں ہیں, والدین اگر گالیاں بھی دے تو اس میں بھی ان کا پیار اور محبت چھپی ہوتی ہے, اس میں بھی آپ کو ان کے وہ ملے گا, آپ کو ثواب بھی, اجر و ثواب بھی ہوگا, ان کا کوئی بیڈ افیکٹ نہیں آپ کی زندگی پہ پڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ والدین ماں پیو دی گالاں کی ہو رہی ہیں نالا. اچھا, رائٹ. بہت ڈفرینٹ محاورہ آپ نے شیئر کیا, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اور آپ سمجھتی ہیں اس میں والدین کا بھی قصور ہے اگر آج وہ ماں باپ کی صحیح طرح فرما برداری نہیں کر رہے یا ادب نہیں کر رہے, احترام نہیں کر رہے؟ دراصل یہ بات ہوگی نا کہ بہت چھوٹی ایج میں آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, والدین کو بھی وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ بچوں کو کیسے دیکھ بھال کرنی ہے, کیسے ان کی تربیت کرنی ہے. دوسرا ایک میڈیا اتنا ہو گیا ہے کہ وہ بچے اب خود بخود ہی ایسا دیکھ کے بہیو کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالصمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کچھ جاننا چاہیں گی, پوچھنا چاہیں گی؟ ہر بیماری کا علاج, یہ آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے, زیل سائنسز سے کرتے ہیں. جی سر, آپ بات کر رہے تھے والدین کے ادب کے حوالے سے. ایک گیپ ہے بہت زیادہ. یہ ہے کہ والدین ایسا کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ بچوں کو تربیت نہ دیں, کیونکہ والدین سب سے زیادہ جو بھی کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے کرتے ہیں. اس طرح کے بچے بھی چاہتے ہیں اور والدین کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں, بہت زیادہ پیار محبت ہے, ظاہر ہے ان کا ایک سہارا بھی ہے, اور اس طرح والدین کے سہارا بھی بچے ہیں. تو یہ کبھی کبھی اپنوں کے ساتھ انسان کا سائیکولوجیکل ایک ایسی کشمکش پیدا ہوتی ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چڑچڑا ہونا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پھر وہ ایک درمیان میں جو ایک رسپیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں دونوں کے درمیان. اس وجہ سے جو ہے یہ آج کل جو احترام کی بات ہوتی ہے یہ بہت کم ہو گئے. ایک وجہ تو یہ ہے, مین وجہ جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی ہے. اوکے. کیونکہ بچے جو والدین ہیں اس زمانے میں
पुराने वक्तों में ना कंप्यूटर था, ना टीवी, ना कुछ और चीज़ें। आज बच्चे जो है लगे हुए हैं उस पे, रात को देर तक चैटिंग करते हैं और SMS और फ़ोन पे कंप्यूटर है और फिर आपका टीवी है, बाकी जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हैं और हत्ता कि मफलूज हो गई ज़िंदगी बिल्कुल, जैसा कि और फिर बच्चों पे बोझ बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़े हो गए बच्चे भी, मकसद इस वजह से भी उसके अंदर एक तंगी है, बोझ इतना ज़्यादा है पढ़ाई का उन पे कि अब सुबह बच्चे ने जाना है, पढ़ना है, उन्होंने स्कूल में, फिर आना है, उन्होंने फिर ट्यूशन्स, शाम तक उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि या खेलें या फिर कोई एक्सरसाइज करें या अपना सेहत का ख्याल रख सकें। वालिदैन का फोकस सबसे इस पे होता है कि बच्चा पढ़े सिर्फ, और साथ तरबियत भी वालिदैन ने ही करनी है और फिर वही बच्चे जो हैं बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बनेंगे। आपने यकीनन बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से वो वक्त जो है उस तरह नहीं दे पा रहे बच्चे जो हैं आज के। और हम आपसे कहेंगे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता डॉक्टर अब्दुल समद हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ील साइंसेस के एक्सपर्ट हैं। आप अगर किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं और आपको उसका इलाज नहीं मिल रहा या आप ऑल्टरनेट मेथड यूज़ करके इलाज चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं 051846606 पर। वैसे तो आप इनका प्रोग्राम नेचुरल हेल्थ हमारे चैनल पे देखते रहते हैं, लेकिन आज ये सच सवेरा में ख़ास तौर पे मदू किया है ताकि हमारे जो सुबह के व्यूअर्स हैं वो भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना कोई सवाल हो रिगार्डिंग योर हेल्थ आप डेफिनेटली जान सकते हैं। 3 किताबें ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं डिप्रेशन के हवाले से। 15 किताबें लिखी। ओके, ज़बरदस्त, मुझे सिर्फ 3 15 बुक्स है माशाल्लाह। तो ये भी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी टिप्स है जो किताबों में मैंने लिखी हैं। इसमें है कि किस तरह की हम ख़ुद के अपने तरबियत करें ताकि हम माहौल की तरबियत कर सकें, अपने आप को बेहतर बनाएं। बिल्कुल, एक वालिद को अगर ख़ुद की अपनी तरबियत अच्छी है तो वो बच्चों की तरबियत भी कर सकते हैं, अगर वो अच्छे रोल मॉडल हैं। बिल्कुल, रोल मॉडल मकसद ये है कि हम ये जान सके कि हमारी सलाहियतें क्या है, हमारी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस कैसे काम करते हैं, हमारे सोच कैसे काम करते हैं, सोच का तख्लीक कहाँ से होते हैं, हमारी सोच की जो कारकर्दगी वो कैसे, हम जो बोल रहे वो कैसे असर करते हैं लोगों पे, हमारे जो वर्ड्स है, जो अल्फाज जो हम इस्तेमाल करें वो कैसे असर करते हैं दुनिया पे, लोगों पे, जो हमारे जो अपने जो किरदार है, जो हमारे अपने मोमेंट्स है, जो हमारे बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे असर करते हैं हमारे माहौल पे, ठीक है, डिपेंड करते हैं इसी चीज़ों पे तमाम के तमाम। राइट। डॉक्टर साहब एक कॉलर आपके लिए कॉल वेट करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? इनामुल्लाह बात कर रहा हूँ लकी मारवात से। वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच मैडम। जाहिर है कि डिप्रेशन के असबाब में से बुनियादी सबब हवा से ज़र और हवा से इक्तिदार है। ठीक है। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि डिप्रेशन में ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किस तरह है, और साथ ये भी बताइएगा कि रूहानियत या इस्लामी तालीमात का इस हवाले से क्या किरदार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छी सवाल है। बात है डिप्रेशन के कुछ उनके मेडिसिन पे तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मेडिसिन तो आप अपने मालिज से रुजू करेंगे तो वो आपको तजवीज़ करेंगे। ऑन ईयर मेडिसिन नहीं बताया जा सकते क्योंकि ट्रैंकुलाइज़र की बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और बहुत बुरी असरात होते हैं उसकी। यानी ट्रैंकुलाइज़र को इस्तेमाल करना ये एक इंसान को आदी कर सकते हैं और डिप्रेशन में ले जा सकते हैं। तो जो इन्होंने फरमाया नेचुरल वे, बहुत अच्छे नेचुरल वे है जो कि आप नेचुरल तरीके से अपने जो डिप्रेशन है उसका इलाज कर सकते हैं। और दीन के हवाले से इन्होंने फरमाया, दीन के हवाले से भी डिप्रेशन का एक बेहतरीन इलाज है। हम डॉक्टर साहब डेफिनेटली ये इलाज जानना चाहते हैं जो हमारा दीन बताता है डिप्रेशन के हवाले से। एक कॉलर काफ़ी देर से वेट करें, उन्हें भी शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहिबा कहाँ से कॉल कर रही हैं? इसी सासरे से बात कर रही हूँ, कराची से। वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे, क्या कहना चाहेंगी?
क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। 21 मार्च है। अच्छा। और मुझे डॉक्टर इनका जो सारा आए हुए इनका फ़ोन नंबर मिल सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर? ओके, आप MCR से ले सकती हैं, होल्ड कीजिएगा जी। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहब, डिप्रेशन का हमारा मज़हब क्या इलाज बताता है? जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है जो कि मुराकबा कहते हैं इसको। ठीक है। मुराकबा आज साइंस ने भी साबित की है कि मुराकबा एक इतनी बेहतरीन चीज़ है कि हमारे अल्फ़ा वेव्स को, ब्रेन के जो अल्फ़ा वेव्स है उसको इंक्रीज़ करते हैं। उसको हमसे जब मुराकबे की कैफियत होती है, मेडिटेशन, बिल्कुल मेडिटेशन की कैफियत में जब हम बैठते हैं तो हमें हमारे जो अल्फ़ा वेव्स है वो रिलीज़ होते हैं, हमारी बॉडी से इंक्रीज़ होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है। तो जब अल्फ़ा की कैफियत में इंसान रहते हैं उस सूरत में स्ट्रेस, डिप्रेशन, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ जैसी बीमारियाँ ये बिल्कुल आते, एंजाइटी नहीं आते और इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ते, मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत बेहतरी आती है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे वो नाज़रीन जो आज पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा, उनके लिए हम बताते चले, ऑल्दो हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस पर गुफ्तगू की थी, ज़ील साइंसेस क्या है? झील साइंसेस एक इंस्टीट्यूट है और इसकी बहुत सारी स्कूल्स है। स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जी, स्कूल ऑफ माइंड साइंसेस, स्कूल ऑफ योगा है, स्कूल ऑफ मेडिटेशन है, यानी स्कूल ऑफ मराकबा जो है इसका है, और स्कूल ऑफ मैग्नम पावर है। इसके फिर 60 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। जो कि इंशाल्लाह अब हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी बनाएं और उस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाएं। ओके। तो ये दीगर अलूम से किस तरह मुख्तलिफ है ज़ील साइंसेस? ये नेचर से ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों से बात करते हैं, नेचर से बात करते हैं, कुदरती तरीके जो होती है, नेचुरल मेथड्स जो होती है ये बताते हैं, इंसान के नेचर बताते हैं, इंसान के एक्सीलेंसेस बताते हैं। ठीक है। इंसान के जो अल्लाह ताला ने जो एक अशरफुल मखलूक़ात बताए, उनको पावर दिए, ताकत दिए, फोर्स दिए, तो उससे बात करते हैं। साइंस के हवाले से इंसान अपने 3 to 4% पावर को इस्तेमाल करते हैं, बाकी अपने साथ कब्र ले जाते हैं। उन पावर पे बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ कर लें और अपने ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं, हेल्थी, हैप्पी एंड सक्सेसफुल बनाएं, किस तरीके से। यानी हमारे टैग लाइन है हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ओके, मेरे ख्याल है हर इंसान यही चाहता है। यही चाहते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो है हेल्थ है, और वो भी नेचुरल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। यानी एक तो ये है कि हम एलोपैथिक से इलाज करें, मसनूई तरीक़ों से इलाज करें, और एक ये होता है कि नेचुरल तरीक़ों से हमने इलाज करनी है। उसमें जो मुराकबा आ गई है, आपके अल्टरनेटिव मेडिसिन में आ गए, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, जोन थेरेपी, होना थेरेपी है, और इस तरह की हाइड्रोथेरेपी है इसमें, और जो माइंड थेरेपीज़ है, योगा थेरेपी है, मेडिटेशन थेरेपी है, मैग्नेटो थेरेपीज़ है। ये थेरेपीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं नेचुरल तरीके से और वो ये रिज़ल्ट देते हैं। ओके। समदा हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग के हवाले से बहुत सारी ऐसे मेथड्स है जो कि क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज़, वो डिजीज़ जो मेडिकली क्योर नहीं हो सकते, जो होम्योपैथिक से क्योर नहीं हो सकते, इसमें क्योर ज़ील साइंसेस में उसका इलाज है। ऐसी बीमारियां जो कि अक्सर लोग कहते हैं ये ला इलाज है, या इसका इलाज जल्द मुमकिन नहीं, या इसका इलाज नहीं है, तो वो ज़ील साइंसेस से उसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह होता है। और मेरा अभी कल मेरा सेशन ख़त्म हुआ था यहीं पे होटल में, तो ऐसे लोग जो